Hello students, today I am going to start with the new chapter of 10th standard, that is Pythagoras theorem. So you already learned in previous standards about the Pythagoras theorem. So in this chapter we are going to prove this Pythagoras theorem. So there are some important theorems also. So first we are going to solve with the first theorem, that is which is one of the most important theorem, that is similarity theorem of right angle triangle. So keep in mind the theorem, that is the heading of this theorem. That is why in the writing the theorems or proofs, you don't have to write this total line, just you can write this similarity theorem of right angle theorem. So what is actually the statement? So in right angle triangle, if altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. So what is the meaning of this one? So if you are given the right angle triangle, आपको ये right angle triangle दिया है और जो 90 डिग्री एंगल है वहाँ से मैंने हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल है, दैट इज़ 1, ये 2 और ये जो ओरिजिनल वाला है वो 3. तो ये स्टेटमेंट और ये थ्योरम क्या बताता है आपको कि ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद ये जो 2 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और ओरिजिनल जो ट्रायंगल है उसके साथ भी ये सिमिलर होते हैं. ये से 1 वाला ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, सेकेंड वाला भी ओरिजिनल के साथ सिमिलर है, और ये दोनों भी एक दूसरे से सिमिलर है. ये हमें प्रूव करना है और ये स्टेटमेंट ये बताता है आपको. सो वो हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो सी गिवन हमें क्या दिया है, दैट इज़ हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और QS परपेंडिकुलर PR. सो दैट इज़ द गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो सी ट्रायंगल PSQ, देखो कहाँ पे है, PSQ, इट इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल PQR. नेक्स्ट वन ट्रायंगल QSR, वी हैव टू शो दैट इज इट इज़ ऑल्सो सिमिलर विद दिस ओरिजिनल ट्रायंगल PQR. एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो राइट साइड सेम है, सो अगेन लेफ्ट साइड्स विल बी द सेम. सो आवर थर्ड इज we can draw it from this first and second, that is PSQ is similar with the QSR. Now see, we're going to take this first one, that is in triangle PSQ and in triangle PQR. Now see, in triangle PSQ you have to write down the proof like this way, that is statements and reason and with numbers. So in triangle PSQ and PQR, so see PSQ and PQR, so see that is angle QPS, Q, P and S, and next one that is RPQ, RPQ. So both are the common angle, so यहाँ पे मैंने reason लिखा है, that is common angle. Next one PSQ and PQR, so PSQ and PQR both are 90 degree angle, so the reason is each 90 degree. So we prove that the two angles are congruent, so both the triangles are similar by AA test. Similarly we can solve the second one, that is QSR and in triangle PQR. So see QSR कहाँ पे है, that is QSR and PQR. Again this R जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में सेम है, that is कॉमन है, और यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे भी 90 एंगल ही होगा. So ये 90 एंगल और ये वाला 90 एंगल. So by the same reasons, that is common angle and each 90 degree, that is SRQ. So see SRQ का है SRQ and QRP. So QRP. So ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है by common angle. Next QSR and PQR. QSR and PQR. So both are congruent. So each 90 degree. And so triangle QSR is similar with the triangle PQR. So ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है by AA टेस्ट. अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है, यहाँ के राइट हैंड साइड आपको देखना है, राइट हैंड साइड सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो सेम. सो वी कैन प्रूव दैट इज PSQ इज सिमिलर विद द ट्रायंगल QSR. सो ये मैंने कहाँ से लाया, तो फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 6. सो दैट इज द रीज़न. So this is one of the most important theorem. So next theorem, that is which is also important, that is geometric mean theorem. So first we are going to see the statement.
So in right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. Means what? So we say, so here we are given the triangle, that is right angle triangle ABC. yes, तो यहाँ पे ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स से, हाइपोटेनियस का अपोजिट वर्टेक्स से बी से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, दैट इज BD इज अ परपेंडिकुलर AC. ये BD जो AC पे हमने परपेंडिकुलर, सो दैट AC इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज AD एंड DC. सो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ये दोनों का, AD और DC का. सो BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD and DC. And in last year, that is in the 9th standard, you learn about the ratio and proportion chapter, in which हमने सीखा था that is if A, B, C are the three numbers and if B is the geometric mean of geometric mean of A and C, then we can write it like this way, that is B square is equals to A into C. Similarly, अगर मैंने अभी आपको बताया that is BD is the geometric mean of AD and DC, so how we can write that is BD square is equals to AD into DC. So that is our to prove. Means जो geometric mean रहता है वो हमें हमेशा से स्क्वायर में ही दिखाना पड़ता है. So BD is the geometric mean, so it is in the square form. So BD square is equals to AD into DC. So see, in triangle ABC, angle ABC is 90 degree. So ये आपको दिया है, और also BD is perpendicular to AC. So my first reason is given. And अभी इसके पहले जो मैंने आपको थ्योरम बताया, दैट इज सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका यूज़ करके हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, दैट इज ADB यस इज सिमिलर विद द BDC ऑल्सो एंड इन ओरिजिनल ट्रायंगल. मीन्स ये तीनों भी ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है. सो बाय सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने कौन से लिए, ये दो लिए, दैट इज ADB इज सिमिलर विद द BDC. नाउ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी प्रोपोर्शन में रहते हैं. सो वी कैन राइट दैट इज AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC. So the reason is CSST, that is corresponding sides of similar triangles. Now taking cross, so BD square is equals to AD into CD. So that this is the our to prove. Now we are going to see the most important theorem, that is Pythagoras theorem, which is the name of this chapter. So Pythagoras theorem क्या कहता है, हमने ये सब सीखा है, दैट इज हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के एडिशन के जितना होता है. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. सो क्या दिया गया है हमें, ये ट्रायंगल दिया है जो राइट एंगल है. सो बिकॉज स्टार्ट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री. क्या प्रूव करना है हमें, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है. सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, सो कंस्ट्रक्शन इज हमने क्या किया है, यहाँ से Q से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PR पे, सच दैट P डैश S डैश S डैश R मीन्स S इज इन दोनों के बीच में है. सो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. सो इन ट्रायंगल PQR मैंने टोटल ट्रायंगल लिया है कि जो 90 डिग्री हमें बताया गया है. सो इट इज़ गिवन. Again QS is perpendicular to PR, it is the reason, that is construction. Now by the similarity theorem of right angle triangle, जब भी कभी हमें ये दिखाई दे पड़ता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये तीनों ट्रायंगल दैट इज 1, 2 एंड द ओरिजिनल, दे आर सिमिलर टू ईच अदर. सो मैंने तीनों भी ट्रायंगल सिमिलर दिखाए बाय सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. इनमें से हम ये दो ट्रायंगल लेने वाले, दैट इज ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PQR. सो हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों सिमिलर है. सो ट्रायंगल PSQ सिमिलर ट्रायंगल PQR, और जब भी ये दोनों सिमिलर रहते हैं तो आपको पता है कि उनके साइड्स
प्रपोर्शन में रहते हैं. सो वी राइट हियर द साइड्स आर इन प्रपोर्शन, दैट इज पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर. Now we taking the cross, so what we get? PQ square is equals to PS into PR. PQ square is equals to PS into PR by from 4. इसका पहला वाला जो स्टेटमेंट है उससे मैंने ये लिया है. ठीक है, अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे QSR एंड ट्रायंगल PQR, सेम ही करेंगे. सो QSR एंड सिमिलर ट्रायंगल विथ PQR. And you know that is the sides are in proportion, so we write that is SR upon QR is equals to QR upon PR. So CSST. Now we taking the cross, that is QR square is equals to SR into PR. So we get this from 6. Now just observe these two. Left side में कौन है? That is PQ square and QR square. Now see here PQ square and QR square, हमें जो प्रूव करना है उसमें भी ये है, लेकिन इसमें क्या किया है, इन दोनों का एडिशन किया है. सो हम भी यहाँ पे जाके इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. सो वी टेकिंग द एडिशन ऑफ द लेफ्ट साइड्स, ऑल्सो वी हैव टू टेक द एडिशन ऑफ द राइट साइड्स ऑल्सो. सो टेकिंग एडिशन ऑफ 5th स्टेटमेंट एंड 7th स्टेटमेंट. सो 5 + 7 मैंने किया है. नाउ सी इस स्टेटमेंट में पी आर एंड पी आर ये दोनों कॉमन है. सो मैंने कॉमन को बाहर लिया है. सो पी एस प्लस SR. Now you have to see the figure. PS and SR कहाँ पे है, देखो PS प्लस SR. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कौन मिलेगा, PR मिलेगा. सो यहाँ पे मैंने PS प्लस SR का आंसर क्या लिखा है, PR. पहले से PR है इनटू PR है, सो मुझे क्या मिला यहाँ पे, PR स्क्वायर मिला. मीन्स मुझे क्या मिला, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर. सो दैट इज आवर टू प्रूव. So this is also very important theorem. Now we see the converse of the Pythagoras theorem. So ये converse क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसका जो हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके स्क्वायर्स के एडिशन के जितना होता है. लेकिन अगर हमें ऐसे दिया गया है कि उसका कॉन्वर्स क्या होगा, कि कौन सा भी एक ट्रायंगल हमें दिया है. सो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. इट्स नॉट अ राइट एंगल. जब तक आपको ये ऐसा सिंबल नहीं दिखाई देता है तब तक आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल सकते. ये मुझे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है और आपको ये दिया गया है कि एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के एडिशन जितना है, तो अब हम बता सकते हैं कि ये जो साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है उसको. तो इसी प्रकार से ये कॉन्वर्स होता है. सो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो इन अ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे राइट एंगल नहीं दिया है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. कौन से भी ट्रायंगल में इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल. नाउ ये कौन सा भी एक ट्रायंगल है, ऐसा वाला मैंने यहाँ पे नहीं डाला. ये हमारा जो दिया गया हुआ ट्रायंगल है वो है ABC इज एनी ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल में हमें दिया गया है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. मीन्स यहाँ पे B जो है वो 90 डिग्री है. तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सो ये जो ट्रायंगल है वैसा ही दिखने वाला एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. कैसे ड्रॉ किया है, जितना AB है उतना ही मैंने XY लिया है. सो यहाँ पे दोनों में सेम सिंबल मैंने दिखाए हैं. सिमिलरली जितना भी BC है उतना भी मैंने YZ को भी ड्रॉ किया है. और द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है वो राइट एंगल है. मीन्स यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया है. ऐसा दिखने वाला ही सेम ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. सिर्फ उसमें फ़र्क क्या है कि ये मैंने 90 का दिया है, ये 90 नहीं है. ये 90 है, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है. नाउ सी हाउ वी कैन सॉल्व. सो द स्टेटमेंट, सो इन ट्रायंगल XYZ, सी यहाँ पे एंगल XYZ इज 90 डिग्री बिकॉज द कंस्ट्रक्शन. And so since it is a right angle triangle we can apply the Pythagoras theorem. So XZ square
is equals to xy square plus yz square. So what is the reason? That is the Pythagoras theorem. Now see, तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने जो साइड्स दिखाए थे वो दोनों भी साइड्स सेम है. सो ए बी एंड एक्स वाई सेम है, वैसे भी बी सी एंड वाई जेड ये दोनों भी सेम है. सो बाय कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वन. सो सिंस ये साइड्स अगर सेम है तो एक्स जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स वाई स्क्वेयर एंड वाई जेड स्क्वेयर, सी द प्रीवियस स्टेटमेंट, सेकेंड वाला एक्स वाई और वाई जेड स्क्वायर मैंने जो लिखा है इनके बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर हम रिप्लेस करेंगे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर से करेंगे. ठीक है. हमें ये दिया गया है दैट इज ए सी स्क्वायर गिवन में, देखो आप. सो गिवन में हमें दिया है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट्स कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड सेम है उसका, सो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. सो एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC square. So from 4 and 5 we get this one. So by taking square root we get xz and AC दोनों भी same है. Now see in triangle ABC and in triangle XYZ, AB is congruent to XY, BC is congruent to YZ. See here by construction, and AC is also congruent to XZ. अभी हमने ये प्रूव करके दिया from 7. So both the triangles are congruent. बाय विच टेस्ट? बाय एस एस एस, बिकॉज तीनों ही साइड हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा है. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट, एंड सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो यू कैन से दैट इज एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए बी सी और ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एक्स वाई जेड बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. बट हमें ये दिया गया है कि एक्स वाई जेड ये क्या है, 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा. एंड सो हमने ये प्रूव किया कि triangle ABC is a right angle triangle. So this is all about the 3 important theorems of this chapter. The remaining concept we will see in the next lecture.